Hello and welcome to another edition of Capital Calculus. I am your host, Anil Padmanabhan. Recently, Prime Minister Narendra Modi, intervening in a debate in the Rajya Sabha, claimed that India's neo-middle class has grown by 25 crore. What he meant is, primarily, 25 crore people have been bootstrapped out of poverty, and he calls them the neo-middle class. So to unpack this significant development, we have in our studios today Pradeep Gupta. He is the CEO of Access My India and someone who has not only pulled off an extremely enviable record in psephology, he's also someone who examines India through a socio-economic prism. So the perfect person to speak to us. Welcome, Pradeep. Thank you very much, Anil, for having me here. So, Pradeep, I wanted to begin with what Prime Minister Narendra Modi spoke in Rajya Sabha about 2 weeks ago. He said that India's neo-middle class has grown thanks to a lot of the heavy lifting that his government has done by providing economic empowerment through toilets, banking, electricity, and so on. So, I wanted your first thoughts on this new demographic category that he's talking about. Yes, Prime Minister, whatever he said is absolutely right. The shifting from poverty to the new middle class, that's what you refer, and that's what Prime Minister has referred to. Also, I would add to this thing is income group is one of the demography. What is more important to understand the entire demography and geography across the country of the nation, India, correct? We need to understand that, what is the construct of that, and then we need to put forward in socio-economic spectrum, considering the future ahead, correct? 5 years, 10 years and up to 2047, that's what Prime Minister also say. By 2047, we are working that India become Viksit Bharat. उसकी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं. And most importantly, why he says so is the demographic dividend which everybody is talking about. So when it comes to demographic dividend, let me try and make you and your viewers understand here. In last 5 years, the median age, I'll first start with the age because age is the most important demography when we say young India or the youth India, What does it mean? Out of 140 crore people, the real workforce, when we say real workforce, which the age group between 18 year of age to 60 year of age, this is what we classify as the workforce. This workforce by 2030, after 5 years from now, will be 1.04 billion, meaning 104 करोड़ लोग होंगे जो अवेलेबल हैं एज वर्कफोर्स और जो कंट्रीब्यूट करेंगे economically in the progress of nation, correct? Now, this is one data point of the demography जो कि मैंने age group की बात करी. Also, it is important to understand what is the geography, the contribution of rural and urban, cities, small towns and villages. So, just for the sake of this, let me tell you, 6% of the total population of the country resides in 6 metro cities, 6%, which is 74 million यानी 7 करोड़ 40 लाख लोग. ये मैं जो डेटा दे रहा हूं आपको वो सेंसस 2011 के आधार पे दे रहा हूं. 6% contributes in 6 metro city. Top 20 cities contribute 150 million, meaning 11.5 crore. What is the share percentage? 10%. ये जो 20 सिटी है कंट्री की, आप कह लीजिए बड़े स्टेट की बड़ी सिटी, बड़ी कैपिटल सिटी, उसको आप कह लीजिए कि 20 cities जो कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है. 100 cities, वी कॉल देम ओल्डन भाषा में कि एयरपोर्ट सिटीज जिसको कहते हैं कंट्री की,
जहां पे कि उस समय एयरपोर्ट थे, अब तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जो टॉप 100 पॉपुलेशन वाइज सिटीज हैं वो कंट्रीब्यूट करती है 15% ऑफ द पॉपुलेशन। और बाकी जो सिटीज एंड टाउन्स हैं, देयर आर 6,500 सिटीज एंड टाउन्स इन द कंट्री, 6,500। उसकी सिंपल डेफिनेशन है कि वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्न बाय द नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी, और जो मेट्रोज होते हैं और जो बड़ी सिटीज होती है, जो 100 सिटी मैंने बात करी, वो नगर निगम होते हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं। उसके बाद जो है विच कॉन्ट्रीब्यूट 30% ऑफ द पॉपुलेशन। सो 15% हो गया आपका टॉप 100 सिटीज। जो बाकी 6,500 सिटीज एंड टाउन्स को ले लें तो ये जो है 30% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो शेयर विलेजेस हैं जिसकी गवर्न जो होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बाई नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से होता है, जो कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है। इन दैट सेंस 100 सिटी को छोड़ दें तो 85% पॉपुलेशन जिन स्मॉल सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको इकोनॉमिक, आपने बात करी कि उनके सामने आय के क्या साधन है, क्या स्रोत है, सोर्सेस, इनकम सोर्सेस क्या है। सो इसमें भी 85% ऑफ द पॉपुलेशन, जो मैंने बताया 85% पॉपुलेशन इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। True. सो when you see this, and हम लोग कंटिन्यूअस ट्रैकिंग करते हैं और जो हम उनसे पूछते हैं, एक हमारा स्किल डेवलपमेंट के तहत भी एक प्रोग्राम चलता है और हम उनसे पूछना चाहते हैं जो कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, आपका स्किल सेट क्या है, यू नो। सो उसमें से यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट about 60% of the youth and young people, when I say youth and young people, it is age group between 15 to 25. 15 to 25. This is when their future shapes in term of real professional life, right? आप 15 से आप 10th में स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और उस हिसाब से आप 11th 12th और उसके बाद कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। और कॉलेज का जनरली डिपेंड ऑन द ग्रेजुएशन और द पोस्ट ग्रेजुएशन, आप 22 से 25 साल की उम्र के बाद अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ यू आर रेडी टू कंट्रीब्यूट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द कंट्री इन अ प्रोफेशनल मैनर। सो 60% ऑफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि अलग अलग तरीके की चीजें वो करना चाहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, पापा कहते हैं बेटा क्या काम करेगा बड़ा होके, तो हम उन्हीं बेटा से ही पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो। तो वो अलग अलग सेक्टर में, फ्रॉम different sector, from steel, cement, manufacturing sector to services to sports and music and entertainment, different types of चीज, कुछ agriculture में अलग अलग तरीकों से अपना रुझान बताते हैं। But the most important and underlining part here, I want to underline it, 60% of the population of this youth says that कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कोई ना कोई काम करना चाहते हैं। Very interesting. अब डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं, इसका मतलब 740 प्लस, अब तो 780 हमेशा ऐड होते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट। आप ये देखेंगे कि हमारा जो इकोनॉमी है लार्जली 3 बड़ी चीजों में है। एक है सर्विस सेक्टर, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है एग्रीकल्चर। ये 3 बड़े हैं, बिग कंट्रीब्यूटर। जिसमें से सर्विसेज आप देखेंगे जो कि सबसे बड़ा है आज की डेट में, इकोनॉमी की जीडीपी की बात करें तो सर्विस सेक्टर लार्जली उस 100 जो आता है रेवेन्यू, 100 को ले लें तो 80 to 90% रेवेन्यू इज रेस्ट इन दीज 100 सिटीज। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक बात कर रहे हैं वो उसका लिमिटेशन या दायरा और भी लिमिटेड, यानी लेस देन 100 सिटीज या लोकेशन, बड़ी लोकेशन जिसको आप कहते हैं, जहां पे कि अलग अलग तरीके से, ऑफ कोर्स माइनिंग की जगह होगी, माइनिंग को आप इसमें कंसीडर नहीं कर सकते, वो स्टील सेक्टर भी उसमें आ गया, सीमेंट सेक्टर भी उसके अंदर आ गया। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि ये जो 1.4 बिलियन पीपल, 104 करोड़ लोग जो 2030 को रेडी होने वाले हैं, उनको कुछ ना कुछ रोजगार के साधन या प्रोफेशनल उनका जो स्किल है उसका जो राइट यूटिलाइजेशन है वो इन
डिस्ट्रिक्ट्स में होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे इस बजट में अभी जो 2025 को 1 फरवरी को बजट जो पेश किया गया, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया गया। उसको नाम दिया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जैसे यूपी में पहले से चलता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो इसी हिसाब से अब उसको पूरे देश में लागू करने के लिए इसी सोच के तहत मुझे ऐसा लगता है सरकार ने कहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करेक्ट तक फोकस किया जाए, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट की जो भी एस्पिरेशनल वैल्यू है या जो भी खास बात है उसको प्रोडक्ट डिक्लेयर किया जाए और उसके इर्द गिर्द सारा इकोसिस्टम जिसको आप सो कॉल्ड बिजनेस कहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है ये 100 सिटी से उठ के अब वो 500 जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, कहने को तो 740 है, बट बड़े जहां पे कि सब्सटैंशियल चंक ऑफ द पॉपुलेशन है और वहां पे कनेक्टिविटी जो बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज है, और वहां पर कुछ ना कुछ पैदा किया जाए ताकि ये जो मैंने कहा 60% पॉपुलेशन तो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती है। तो सबसे बड़ी बात जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात कर रहे हैं, तो पहला एज ग्रुप हो गया और दूसरी ज्योग्राफी हो गई। कि मैं आपके दर्शकों को एक चीज बड़ी अच्छी बताना चाहता हूं कि वाई डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी ये लोग बात करते रहते हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है भाई साहब, जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है सबसे पहले आप या डॉक्टर या नर्स उसको उठा के देखती है लड़का है कि लड़की है, तो दैट्स द जेंडर। जैसे ही उसको अब स्कूल की तरफ जाना है तो उसका म्युनिसिपल सर्टिफिकेट और डॉक्टर का सर्टिफिकेट जिसको आप बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, तो वो वहां के म्युनिसिपल में, यदि वो शहर में पैदा हुआ है, यदि वो गांव में हुआ है तो ग्राम पंचायत में जाके उसका सर्टिफिकेट लेना है आपको। तो वो हो गई ज्योग्राफी, बच्चा कहाँ पर है या मानस कहाँ पर रह रहा है, वो ज्योग्राफी हो। फिर जैसे ही बोलते हैं कि अब इसकी उम्र हो गई जी 5 साल, तो अब इसको या 6 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना चाहिए, उसके पहले जूनियर नर्सरी, यानी एज ग्रुप हो गया कि अब इसको पढ़ाई का समय आ गया। तो आप स्टार्ट हुए जेंडर, ज्योग्राफी, रूरल अर्बन कहाँ पर है, उसके बाद एज तक पहुंच गया, बच्चे को स्कूल जाने का समय आ गया। अब जैसे ही बच्चे को स्कूल जाने का समय आया तो अब बच्चे की पढ़ाई का क्या पढ़ाई की इसने, स्कूल तो चला गया, कॉलेज तो चला गया, इसने क्या पढ़ाई की, विच इज यू कॉल एजुकेशन। जैसे ही एजुकेशन पूरी होती है तो आपका अगला क्वेश्चन होता है ये करता क्या है, यानी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ये करता क्या है। जैसे ही वो ऑक्यूपेशन में बोल दिया जी ये फलानी फलानी चीज करता है, तो आपका अगला सवाल आ जाता है कमाता क्या है, कमाता कितना है, पैसा कितना, तो वो हो गया आपका इनकम ग्रुप। तो कहने का मतलब ये जो 6 कॉमन डेमोग्राफी है और 3 यूनिक डेमोग्राफी है, विच इज एज, ज्योग्राफी, रूरल अर्बन और आपका जेंडर, ये यूनिक होगा। बाकी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम इज ए कॉमन। करेक्ट। तो हमको इंडिया को जब हम बात करते हैं कि यंग इंडिया या जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमको इस फ्रेमवर्क में उसको देखना पड़ेगा। ये जो यूथ है जिसकी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी की प्राइम मिनिस्टर ने बात करी कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए, तो ये कहाँ है, वेयर दे विल कंट्रीब्यूट एंड हाउ दे विल कंट्रीब्यूट, what are the infrastructure and what are the provisions are available in those very districts where they reside, and that is where they want some kind of a professional service. Now that they are out of abject poverty, they are still very vulnerable. And like you rightly pointed out, the youth is looking for jobs to obviously to not stay out of poverty, but also to achieve a higher standard. So which means we now come to this aspirational quotient. जी. How does that fit in with the public policy framework for future, not what exists today? So how does public policy, you've already outlined how they've gone to districts, but what are the other tweaks they can look at to address? Yeah, so the next level is first they have planned it, then identify the area of concern or improvement where the scope is tremendous. So you talked about poverty. I always talk about the sheer income. Poverty was earlier days, 20 years, now is continuously poverty is been declining and there is an improvement. Now question is still
2/3 of the population lives with less than $100 a monthly income, less than $100 a month. मीनिंग आज की बात करें, डॉलर रुपीस वैल्यूएशन ऊपर नीचे होता रहता है, उसका एक मोटा मोटी बात हो गई कि 8,500 रुपया। अब आपने बताया कि यूथ के अपने एस्पिरेशंस हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं, तो मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी उसमें सबसे पहली चीज आती है एजुकेशन, कि इनको फ्यूचर, आर दे फ्यूचर रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द न्यू एज, ग्लोबल एज, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसके लिए सबसे पहला है एजुकेशन, दूसरा है राइट एजुकेशन, तीसरा है एप्रोप्रिएट एजुकेशन। व्हेन आई से एप्रोप्रिएट एजुकेशन मीनिंग कि आपको जो भी कुछ काम करना है, आपको स्पोर्ट्स से जाना है तो आपको उसकी स्किलिंग करनी होगी। व्हाट यू कॉल इट, स्किलिंग। आपको फलाना काम करना है तो उसकी स्किलिंग होनी चाहिए। इसके लिए अब आप सरकार का नेक्स्ट चीज जो देख रहे हैं, एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन वहां से चालू होती है एजुकेशन, असली एजुकेशन, फाउंडेशन व्हाट यू कॉल इट, एंड सेकंड इज स्किलिंग में जब आप एक प्रोफेशनल स्किल की तरफ जाते हैं, जब आप एक 10th और 12th की क्लास को या पढ़ाई को क्रॉस करते हैं, उसको स्किल पे भी देखिए तो सबसे ज्यादा बजट जो पहले नहीं होता था अब वो स्किल के ऊपर किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एजुकेशन एंड स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रियली make sure that we get this demographic dividend. Until and unless they are skilled, they are capable enough to face the world or challenges, this is not going to happen. So very interesting, you mentioned education. So is that why the new education policy, which was introduced a few years ago, emphasizes education in your language? Yes. So it basically democratizes education, obliterating the hegemony of English. So is that also part of this grand plan, I guess? Absolutely yes, absolutely yes. Even in engineering college they have saying ki you should study in your local language, mother tongue, because that is where, because of the language barrier, bulk of the talented has been kept away, you know, for these kind of a thing. Even if you see this, now one is this, right, कि इंजीनियर जब तक आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो आप इंजीनियर बन ही नहीं सकते वगैरह वगैरह, राइट, इवन डॉक्टर फॉर दैट मैटर। अब आप उसके देखिए कि स्पोर्ट्स पे आइए। अब जो आपने जितने ओलंपिक्स अभी हुए रिसेंट पास्ट में, आप 2 से 3 या 4 ओलंपिक देख लीजिए, और उसके पहले के ओलंपिक, तो लास्ट 4 ओलंपिक विच इज अबाउट 16 ईयर्स, एंड उसके पहले के 16 ईयर्स के देख लीजिए, 30 ईयर्स का आप पाएंगे कि पहले जो हमको मेडल मिलते थे वो शूटिंग में मिल रहे थे। उसके बड़े एग्जाम्पल कर्नल राज्यवर्धन राठौर हैं, अभिनव बिंद्रा हैं, यू नो, ये सब गोल्ड मेडल, और फिर उनको राठौर साहब को सिल्वर मेडल जीता। अब क्या आ रहा है, अब आपने देखा कि जो चैनू है उन्होंने लिया मेडल, बहुत सारे रेसलर्स ने लिए, वेट लिफ्टर ने लिया चैनू ने, उसके बाद आप देख रहे हैं कि बॉक्सिंग में ले रहे हैं, और ये सब इनकी आप डेमोग्राफी देखिए, आप ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। चैनू की बात करें तो वो ट्राइबल आपके असम और मणिपुर और उधर से आते हैं। तो पहले क्या था कि जिनके पास स्टैमिना है, दे डू नॉट हैव द इन्फ्लुएंस एट द राइट प्लेटफॉर्म ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिसके पास इन्फ्लुएंस है उसके पास स्टैमिना नहीं है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए वो उस तरह के आप मेडल लेते थे। तो जो मैंने बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उसका भी एक पार्ट है। दूसरा बात है, दूसरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री या सेक्टर पे स्पोर्ट्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, हमने डिस्कस कर लिया, सर्विसेज की भी बात कर ली कि कहाँ पर क्या अवेलेबल होगा। अब आप ये देखिए कि म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, कोरोना के पहले जो भी म्यूजिक एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टूडियो चाहिए होता था, टीवी जिसको हम जीसी कहते हैं, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स होते थे, या मूवीज देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, उसके सेट बनाने के लिए और उसके इकोसिस्टम के लिए ही इतने पैसे खर्च होते थे, करेक्ट है। और फिर बाद में एक्टर एक्ट्रेसेस की
कॉस्ट अलग। आज की डेट में क्या है? आज की डेट में इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, दिस साइड और दैट साइड, वो जो एक्टर्स थे, मुझे बताया जाता था कि जी 1 करोड़ का तो स्टेज तैयार होता है और फिर उसके ऊपर वो एंटरटेनमेंट वाली बातें करते थे। अब तो स्टेज की जरूरत ही नहीं है साहब। और एंटरटेनमेंट की बात होती है तो कहा जाता है कि रोज रोज थोड़ी आप एक ही चुटकुला सुन सकते हो या एक ही मूवी, तरह की मूवी देख सकते हो। तो अब वर्सेटाइलनेस देखिए आप कितनी आ गई सडनली। तो जो सेट्स है, आप भी देख रहे थे, अभी सुना भी होगा आपने कि बॉलीवुड में लगातार मूवीज सक्सेस कम और फ्लॉप ज्यादा हो रही है, ये सुना आपने? उसके भी उन्होंने कंपेयर किया कि जी साउथ की मूवी थोड़ी ज्यादा सक्सेस हो रही है। करेक्ट है। क्यों? इसीलिए कि अब उसके अंदर ये कंटेंट की वैरायटी आ गई। कंटेंट इज व्हाट? क्रिएटिव। क्रिएटिव इज व्हाट? कि माइंड्स। तो अब इतने सारे माइंड्स अक्रॉस द कंट्री मेन स्ट्रीम में आ गए, जुड़ गए थैंक्स टू कोरोना। तो सबको प्लेटफॉर्म मिल गया, सबको प्लेटफॉर्म मिल गया, तो दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। उसके कंपैरिजन में जो सेट इंडस्ट्री के वो लोग थे जो इतना पैसा खर्च होता था, अब वो रिलेटिवली कम सक्सेस हो पा रहे हैं। सो दिस इज द मीडिया नेट। इसी तरह से सारी इंडस्ट्री को आपको करना पड़ेगा, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो, चाहे फाइनेंस हो, तब जाके इस हिसाब से स्किल जिसकी जो बच्चे की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज के मुताबिक और उसके एस्पिरेशन के मुताबिक अब उसको स्किलिंग करना फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज जब स्किलिंग हो गई तो उसको मेन स्ट्रीम में कनेक्ट करना। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग फॉर। Very interesting. But tell me something, all that you told us, you walked us through the democratization of access and use. So you're so correct, because the YouTube CEO day before yesterday issued a statement that YouTube is the new TV. So supporting what you just said, Of course, yes. that is replaced as a platform. Of course. But tell me, how, when you know, the problem is that all these skill sets that you require, and keep in mind that these are people who are coming out of poverty and still very vulnerable, and ahead of them you have moving targets. So the skill sets required are very different. AI disruption is coming, so it's creating another round of disruption. So what was skilled yesterday is unskilled today. So how does public policy address this moving target problem? See, so very good question you asked, Anil. Actually, see, you said the target audience, as far as these workforce or the talent available in the country, how do we skill them, and what is the policy and government role into this, right? This is the question. See, the most important demography is women, which contributes 50%. Now, if you see in India, I am more than convinced through our studies, only not even 5%, much less than that, woman is actually in a professional life. Professional, though bulk of the women are involved in some kind of a labor or agriculture based work. That is true, but still 50% is a significant number. First and foremost, the access. What is access is, in our construct, हम जो एक बना हुआ है, परंपरा बनी हुई है कि पहले से, अब तो बहुत वो चेंज हो गया उसमें, कि वुमेन जो है ज़्यादा करके घर के बाहर या प्रोफेशनल लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं करती, राइट? क्यों? क्योंकि वो बाहर जाना और उस तरह के तमाम तरह की लिमिटेशन होती है। अब आपने गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करी। अब आप ये देखेंगे पिछले 10 साल से, टू बी प्रिसाइज, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पॉलिसी का जो कोर सेंटर है वो वुमेन है। क्यों आपने देखा कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करके उनके अकाउंट में पैसे दिए जा रहे हैं? तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ी एक डिबेट हो सकती है, बट हम उतनी डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। हमारा सब्जेक्ट आज इकोनॉमी के ऊपर है। तो आप ये देखिए कि यदि किसी वुमेन को 1000 या 2000 या 2500 डिफरेंट स्टेट में मिल गया, तो आप क्या सोच रहे हैं उससे उसका जीवन चल जाएगा? उससे उसका जीवन नहीं चलेगा। बट वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है कि भाई पैसे से ही तो एम्पावर होंगे ना आप, उसी पैसे से फर्स्ट आप एम्पावर होंगे सोशली, उसके बाद उसी पैसे से आप अपनी स्किलिंग भी करेंगे टू द लार्ज एक्सटेंट। आप कुछ पढ़ाई करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ, एंड सबसे बड़ी बात है आपकी फैमिली के अंदर से होगी। दिस इज द वुमेन एम्पावरमेंट, दैट्स फर्स्ट थिंग।
सेकेंड थिंग इज दैट जो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी के भी अपनी एक कुछ बेसिस हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में जब तक कि इंटरनेट ना हो, जब तक कि स्मार्टफोन ना हो, तो टेक्नोलॉजी का आप यूज कैसे करेंगे, फुल यूज। आई एम टॉकिंग अबाउट द विलेजेस। तो अब सरकार ने, मैंने कहा ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है जिसके ऊपर जोर है कि हर एक ग्राम पंचायत में कम से कम इंटरनेट का कनेक्शन एंड दैट टू वाईफाई एक्सेसिबिलिटी चाहिए ही चाहिए। तभी अब आप देखिए कि वुमेन अब घर में बैठी, हम सब जानते हैं कि बैक ऑफिस या बीपीओस के लिए इंडिया बहुत फेमस है। वेस्टर्न कंट्री या बाहर की कंट्रीज जो है इंडिया में बीपीओस को अपना सेट किए हुए हैं। तो जहां पर बीपीओ या जिसको आप कोरोना की भाषा में वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं, यदि आपको ऑनलाइन कोई भी काम कराना है तो अब आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, बॉम्बे में बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, और किसी गांव में बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, एज लॉन्ग एज बैंडविड्थ ऑफ दैट इंटरनेट एट पार। तो अब जो सबसे बड़ी चीज होने वाली है, ये जो वुमेन है, इतना बड़ा चंक है, इस तरह के काम में बड़ी संख्या में इन्वॉल्व होंगी, जो पहले अभी तक मेट्रो सिटीज तक ही होती थी। ये एक सबसे बड़ा चेंज आएगा और ये इससे सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंक्लूजन होगा, ये जान लीजिए आप। ये एक बात होगी। दूसरी जो आपने बात बोली कि स्किलिंग अलग अलग विषयों के लिए, अब जो थोड़े साल के पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बनी और उसमें एनएसडीसी जो एक डिपार्टमेंट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसका गठन हुआ और उसी के तहत बहुत सारा बजट एलोकेशन हुआ और उसी के तहत जब हम लोग उसको स्टडी करते हैं, उनके जो प्रोविजंस हैं, तो आप ये मान लीजिए छोटी छोटी जगहों पे मल्टीपल विषय के स्किल सेंटर्स हैं और जिनको जो स्किल की जरूरत है, फॉर एग्जांपल जर्मनी से सबसे ज्यादा डिमांड आती है नर्सेस की। तो नर्स कोई एक अपना अच्छा खासा एक उसका प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का, कोचिंग का, तो फिर वो तो हो गया साहब, चलो, बट जर्मन भाषा तो सीखनी पड़ेगी। अब जर्मन भाषा ऐसी भाषा है कि कम से कम वो 6 महीने से 9 महीने का बीच का विषय है। तो 6 से 9 महीने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो उनका नहीं होता था पहले। अब इसके लिए ये डिपार्टमेंट के तहत, वो एनएसडीसी के तहत ये सपोर्ट भी दिया जा रहा है कि नॉट ओनली आपको जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, बट आप, चूंकि ये हर गांव में तो नहीं हो सकता, हर डिस्ट्रिक्ट में तो जर्मनी सिखाने का सेंटर नहीं हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, वेरी लिमिटेड वो। तो आपको जो भी सिटी में ये सिखाया जा रहा है वहां पे हॉस्टल रहने खाने का भी पैसा मिलेगा। तो अब आप ये देखिए कितना आसान हो गया सडनली। जैसे ही आपको रहने खाने और स्किलिंग तीनों चीजें ऑलमोस्ट फ्री हैं, तो संख्या इसकी सडनली बहुत बढ़ जाएगी। अरे सिर्फ इंडिया में नहीं, एक्सपोर्ट में जैसे कि ड्राइवर है, बहुत बड़ी डिमांड्स आती है, बट अगेन भाषा होनी चाहिए। आप अमेरिका में भेजेंगे तो भाई उसको बेसिक इंग्लिश तो आनी पड़ेगी ना। True. तो ये छोटी छोटी चीजें देखिए आपकी, पहले तो ड्राइविंग की स्किलिंग करनी है, फिर उसको भाषा की भी स्किलिंग करनी है। तो इन सब चीजों के ऊपर मेरे ख्याल से जो ये बजट आया है, मैं बहुत खुश था इस चीज को लेते हुए कि अब जो गवर्नमेंट ने इस चीज को, जो रियल विकसित भारत की बात कर रहे हैं, यदि आप इस 85% ऑफ द पॉपुलेशन को, जिसको आप पहले से सोशल वेलफेयर स्कीम्स के तहत या मेजर्स के तहत फीड करते हैं, जब ये कंट्रीब्यूट या ये कुछ पैदा करना चालू कर दे, जब तक ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक तो विकसित भारत बन ही नहीं सकता। आप एक फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए। यदि आपकी फैमिली में 6 मेंबर है, हो सकता है 2 बच्चे हो, 4 एडल्ट्स है, यदि एक जना कमा रहा है और 4 खा रहा है तो लोड क्या होगा, और यदि 4 जने कमा रहे हैं, 4 के 4 या 3 कमा रहे हैं, यानी ज्यादा कमा रहे हैं, कम डिपेंडेंट है, तो उस फैमिली का इकोसिस्टम और इकोनॉमी एक अलग ही लेवल पे जाएगी। इट अप्लाई सेम विद द कंट्री। ये चीज की जो समझ है इस बजट में देखा गया है, जो कि पहले कंपैरेटिवली ऐसी सोच नहीं होती थी। इस बार मैंने पहली बार लाइफ में बजट पे कोई कमेंट किया, बिकॉज आई कैन सी दैट कि बॉटम अप अप्रोच लगाई गई है कि ग्राउंड से
चीजों को उठाना पड़ेगा, सो दैट वो जो सोशल वेलफेयर स्कीम की जो लाइबिलिटी है दैट नीड्स टू बी कन्वर्ट इनटू टू लार्ज एक्सटेंट इन असेट। आई एम नॉट सेइंग कि लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी, ना, वो कभी नहीं होगी, बट उसका सब्सटैंशियल अमाउंट कम होगा। और सबसे बड़ी चीज है, ये कंट्रीब्यूट करना जब चालू करेंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन 85% जो मैं बोल रहा हूँ, 100 करोड़ वर्क फोर्स, उसकी जरूरत है, वो इस बजट के अंदर दिखाई दे रहा है। वो कितना इंप्लीमेंट होगा वो समय बताएगा। Thank you, Pradeep, for explaining the productivity growth in an economy by the women participation in the workforce so well using the family unit. I couldn't have done it better. So I want to, now we are running out of time, so I want a final question to you. This new middle class, going back to where we started our conversation, so now that they are out of abject poverty and like you said, less, demanding of social welfare as they progress up the value chain, how are they going to vote politically? Or rather think politically? I'll tell you. इलेक्शन क्या है? जीत और हार, एक पार्टी जीत रही है, एक नेता जीत रहा है, एक हार रहा है। मैं अपनी बुक में भी लिखा है मैंने, हाउ इंडिया वोट्स, और सब जगह कहता हूँ, और इट होल्ड गुड इवन इन अमेरिका। Winning election is the art of winning the hearts of the people and it cannot be fake. आप ये जान लीजिए, इलेक्शन वो ही जीतता है जो लोगों के दिलों को जीत ले। और दिलों को जीतने का क्या तरीका है? आप गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डिलीवरी, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस। तो आप जब तक डिलीवरी नहीं करेंगे टू देयर सेटिस्फैक्शन, देयर मीनिंग लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तब तक आप नहीं जीत सकते। तो आप गवर्नमेंट में चुन के ही क्यों आए, कुर्सी पे बैठे ही क्यों आए? कोई डिजिग्नेशन या वो थोड़ी लगाना है, गवर्न करना है। तो गवर्न का मतलब है प्योर डिलीवरी। आप उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी विषयों को, उनकी प्रॉब्लम, इश्यूज, कल्चर, लैंग्वेज, जब तक आप उसको नहीं समझे और उसको एड्रेस नहीं करें, तो व्हाट आर यू लीडर फॉर, व्हाट आर यू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फॉर? एंड दिस इज इन वन वर्ड डिमांड द अकाउंटेबिलिटी। वन वर्ड सफाइज, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिलीवरी। when you have come to me 5 years back asking or requesting me to vote for you, then you have made so many promises कि I will bring this kind of change to your life. If you have delivered those, you are the winner. If not, then next alternate, the challenger. Great. That's a great note to close on. The fact that looking ahead, the new middle class, which we have been discussing today, is witnessing an aspirational quotient which is growing, and as Pradeep very perfectly summed it up, it's the problem of accountability. So politicians are now going to be held accountable as India's demographic shift moves forward, and this is not the end of the story, as it were, and we will come back again and again to this subject. So thank you for watching, but don't forget to subscribe to stratnewsglobal.tech on YouTube. Hit the bell icon so that you don't miss any updates. And please do share your thoughts, ideas and suggestions with us. I'm available on Twitter at Capital Calculus. I'll be back next week with another episode. Till then, stay safe.